नमस्कार, आपको बता दें कि ओखला में टेक्सटाइल सेक्रेटरी श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह ने इंडिया क्राफ्ट सप्ताह के चौथे संस्करण में सरस्वती ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड NSIC का उद्घाटन किया। सरस्वती ग्लोबल 43 साल की विरासत के साथ हस्तनिर्मित क्षेत्र के आसनों का एक प्रमुख निर्माण है। सरस्वती ग्लोबल भारत में शिल्प के ऑस्कर भारतीय शिल्प सप्ताह के माध्यम से घरेलू बाजार में खुद को पेश करने के लिए खुश है, जो 20 से 23 अक्टूबर तक किया गया। श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह ने सरस्वती ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में महिला कारीगरों के 50% प्रतिनिधित्व में सरस्वती ग्लोबल के प्रयासों और सामाजिक अच्छाई का निर्माण करके भारत की विरासत को आगे ले जाने के जुनून को बधाई दी। In fact, I felt like spending a couple of more hours there, seeing those crafts and talking to those craftsmen. Then I also went to that brand section. I must congratulate all the organizers, everyone who is behind this. I always feel that, frankly speaking, I didn't know much about handloom and handicrafts till about 1.5 years back or so, till I joined Secretary Ministry of Textiles. And since then, my effort has been to reach as many craft clusters, as many handloom clusters as possible, talk to people, because I always feel that the kind of richness which we have, both in handlooms and handicrafts in India, no other country, nowhere near it. In fact, generally we say that 95% of handcrafted textile in the world comes from India alone. And in the kind of variety we have, I remember I come from a state of Bihar. Now we knew about Madhubani painting. But then Madhubani painting is not the only craft. Even when we talk of painting, you will find there is something called a Tikuli painting, there is something called a Godna painting, there is something called a Manchusa painting. So the kind of variety we have in India, so they represent, as I always say, they represent, one is that our cultural heritage, and it is responsibility for all of us to keep that cultural heritage intact, prosper, and secondly, of course, it's also a big source of livelihood for lakhs and lakhs of people who are engaged in weaving or in handicrafts. So I'm very happy to be here. I'm grateful to all the organizers. I would like to congratulate Sumesh Aliti for the fabulous effort they put in bringing all these craftsmen here today. Like he said, that our country is so rich in culture, in heritage, and each part, it's not even a state, it's like there could be small villages which are famous for a particular handicraft or a textile or a fabric or a style, and which all of us don't even know about. And it's very nice to see what we are doing being appreciated across the globe. And it's very nice to see that over the years I have noticed that a lot of institutes or organizations like what we are here for today, and designers and people are actually going out to the villages and getting the craftsmen and the artisans to showcase their work. So my heartfelt congratulations to India Craft Week and to everyone here today and to all the craftsmen who have come today. क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? यहाँ पे सारी चीजें हो, बहुत बेहतरीन एग्जीबिशन लगी हुई है, पुराने कपड़े की कारीगरी है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो पूरी देखी भी नहीं है, जितनी देखी है उसके हिसाब से जरूर कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ तो जैसी कलाकारी है, जैसी कारीगरी है, हमारे यहाँ जैसे आर्टिजन्स हैं, दुनिया में कहीं नहीं होंगे। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहाँ तरह तरह की कारीगरी है। कुछ कारीगरी ऐसी है जो थोड़ी लुप्त प्राय भी हो रही है एक्चुअली। तो बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है कि यहाँ पे दोनों चीजें हैं, लोगों को देखने का मौका मिलता है, लोगों को खरीदने का मौका मिलता है। जो कारीगर है अपनी हुनर भी दिखा पाते हैं, बिजनेस भी कर पाते हैं। तो जो ये क्राफ्ट विलेज की जो इनिशिएटिव है, जिन्होंने क्राफ्ट वीक जो 4 दिन का चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि क्राफ्ट को प्रमोट करने की जरूरत है। मेरा तो अपना मानना है कि क्राफ्ट ही हमेशा जिंदा रहेंगी जब तक लोगों के, जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, उनके हाथों में, उनकी उंगलियों में जब तक जादू रहेगी, ये क्राफ्ट रहेगा। लेकिन हम लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी हेरिटेज है। एक तो हमारी ये हेरिटेज है, और दूसरी जो है ये हमारे लाखों लोगों की जीविका का साधन भी है। तो एक तरफ अपनी जो हमारी हेरिटेज है, जिसपे हम गर्व करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ताजमहल हमारी हेरिटेज है, या कुछ बातें करते हैं, तो ईच एंड एवरी क्राफ्ट जो आप देख रहे हैं वो सब हमारी हेरिटेज है एक्चुअली। तो हम हेरिटेज को भी जिंदा रख रहे हैं, और साथ में इन कलाकारों की रोजी रोटी भी हो रही है।
तो उस हिसाब से बहुत अच्छी प्रदर्शनी है। आज के दौर में जहाँ मशीनों का युग आ गया है, जहाँ पे मशीनें सारा काम कर रही है, वहाँ पे ऐसे कारीगर जो हस्तकला का अपने प्रदर्शन करते थे, हाथों की बनाई हुई चीजें दिखाते थे, आजकल उनका जो है प्रदर्शन बहुत कम होता जा रहा है। नहीं, देखिए मैं पूरी तरह सहमत नहीं होऊंगा। ऐसा है कि सब चीज के लिए जगह है, मशीन के लिए भी जगह है, और ऐसे लोग हैं जो हमारी स्लो प्रोसेस है, जैसे हैंडलूम की बात ही है। मैं नहीं मानता हूं कि हैंडलूम जो है, जो उसको पसंद करने वाले हैं वो आज उसके लिए वो मांगी कीमत भी देने को तैयार है। उसके पीछे की जो कहानी है उसको हमको बताने की जरूरत है। एवरी वीव हैज ए स्टोरी टू टेल। तो अगर उसी तरह से हर कला के पीछे एक कहानी है, अगर उस कहानी को हम लोगों को बता पाएंगे तो आज क्या यहाँ क्या आपको पता है कि नहीं है, पिछले साल करीब 33,000 करोड़ के हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा 15-16 हजार करोड़ के हैंड टफ्टेड जो कारपेट्स हैं, जो हैंडमेड कारपेट्स हैं, वो भी एक्सपोर्ट्स हुए हैं। तो आज के दिन में भारत में ही नहीं, विश्व में भी, और विशेषकर अब जब लोग सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, तो और भी इसके चाहने वाले हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि ये क्राफ्ट जो है कोई खत्म होंगे। लेकिन हाँ, हम सबका प्रयास करना जरूरी है। सरकार में है उनका भी प्रयास करना जरूरी है, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उनका भी है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, डिजाइनर हैं, सबका इसमें सहयोग चाहिए कि ये क्राफ्ट जो है वो जिंदा रहे। क्या कहेंगे सर, यहाँ पे जब एग्जीबिशन में अपना हिस्सा ले रखा है और अपने बहुत बेहतरीन तरीके की कारपेट वगैरह और सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये व्यूवर्स के लिए पूरी एग्जीबिशन है जिसमें जो अलग अलग कला है उसको बताने की कोशिश की है। और हम लोग पिछले 40 सालों से ये हैंड नोटेड जो पूरे जो 100% हाथ से काम होता है, इस तरह के कारपेट बना रहे हैं। अभी तक एक्सपोर्ट कर रहे थे, अभी इंडिया में इसको और लॉन्च कर रहे हैं, जिससे यहाँ के लोग भी इस बेहतरीन चीज को खरीद सके। आपके जो कारीगरी है इसमें महिलाओं को आपने सशक्त बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो आज के दौर में जहाँ पे मशीनें सारा काम करती हैं और आप घरेलू महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनसे सहयोग लेते हैं, तो कैसा लगता है? ये जो हैंड नोटेड कारपेट का काम है, ये हाथ से ही बन सकते हैं। ये जो स्लो बनता है, यही इसकी खूबसूरती है। मशीन इस तरह के कारपेट बना ही नहीं सकती है। जब से हम काम शुरू किए हैं तभी से महिलाओं का योगदान और ज्यादा है। करीब हमारी कंपनी में जितने व्यूवर, उसमें मोर देन 60% महिलाएं ही काम करती है। सरस्वती ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आपकी जो फर्म है, ये और क्या क्या प्रोडक्ट अभी लाने वाली है? हम लोग केवल कारपेट का ही प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें नए नए कलेक्शन, नई नई टेक्निक, नए नए इसमें डिजाइन्स, नए टेक्सचर, इस पर हम काम करते रहते हैं, जो हर समय साल में 3-4 दफा नए नए और कलेक्शन हम लॉन्च करते हैं। आपकी कारपेट की शुरुआत कितने रुपए से और कहाँ तक जाती है? हमारी कारपेट की शुरुआत 300-400 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 6,000 रुपये 7,000 रुपये स्क्वायर फीट तक जाती है। क्या कहेंगे जो व्यूवर आप देख रहे हैं उनके लिए, आपकी एग्जीबिशन देखने के लिए क्या मैसेज देंगे? हमारे व्यूवर जिस तरह खुश हैं, हम जब डोमेस्टिक मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं तो उनको और भी ज्यादा, जब ये पता चलेगा कि अपने यहाँ इंडिया में कारपेट बिक रहा है, तो उनको और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमारा हाथ का बना हुआ कारपेट घरों में बिछाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।